Good evening, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've started Paper 2 Commerce, right? And in today's class, we will be discussing Unit 3 Business Economics. Okay, so prior to this video, I've already covered 2 units of Paper 2 Commerce, as you know, Paper 2 for your commerce. And this unit we will be specifically talking about business economics. And in today's class we will be starting with this. हम इसे start कर रहे हैं, not saying that we will finish this one today itself because it's a huge unit, time लगेगा, right? I'll try to cover majority of topics in today's class. What we will start with few basics, right? What is exactly business economics? We'll cover the basics first, and then we'll go to more advanced क्वेश्चन रिलेटेड theories, right? तो जो हमें क्वेश्चन पेपर में वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, सो वी विल कवर दैट पार्ट एज वेल. फर्स्टली हमें जो हमारा आइडिया है दैट इज टू cover the basics, and we will start with the basics and then we'll draw towards the more advanced question that is related to the theoretical portion. ठीक है, तो ये हमारा आज का प्ले आउट होगा, जैसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे आज हमारी वीडियो में. ओके, और मैं सभी को मैं चाहता हूँ कि दैट यू गाइस ऑल पे डेफिनेट अटेंशन with within the video. I'll make sure that I draw some few hints about your questions, about what your questions could be, and how you have to make sure that you revise or remember the important and key things. So yeah, make sure that you attend and watch the video till the end. Okay, now let's start with what is business economics. What it is, a branch of economics. As we know about microeconomics, we have read about macroeconomics as well. But what is business economics and why it is relevant? As you know, commerce is more oriented toward business, and as a businessman you need to know the economic principles to make practical decision in businesses, right? So firstly, what will be the benefit of using business economics? That it helps firms to make more profit, spend less money, and become more effective. So एज अ फॉर्म मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है टू नो व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिकॉज मेरे 3 मेजर फायदे दिख रहे हैं कि आई कैन मेक मोर प्रॉफिट while spending less and becoming more effective. So all of these can be helpful, can be done through business economics. So that is where business economics comes in the picture. ठीक है, अब ये क्या है, ब्रांच है अप्लाइड इकोनॉमिक्स का. ये एग्जामिन करता है फाइनेंशियल पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट, मार्केट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज दैट कॉर्पोरेशन एनकाउंटर. तो ये मैंने जैसे बोला, इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. किसका? अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जो हम अप्लाई करते हैं उस इकोनॉमिक्स का, नॉट ऑफ थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स. सो दैट इज दिस इज प्रेटी रिलेवेंट एंड यूजफुल. तो इसमें क्या क्या मेजरली इम्पैक्ट करता है? पहला, ये फाइनेंशियल को एग्जामिन करता है. फिर ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी है, मोनोपोली है, डुओपोली है, ओलिगोपोली है. सो वी गेट टू नो. परफेक्ट कंपटीशन है, दो परफेक्ट कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट, बट हाँ कि क्या है क्या नहीं है. फाइनेंस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मार्केट के बारे में, और एनवायरमेंटल इशू जो एक कॉर्पोरेशन को एनकाउंटर करना होता है, सब इसके बारे में बताता है. इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज भी यूज होती है और मेथड्स भी यूज होते हैं. ये क्या क्या फैक्टर्स जो एक फर्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे उनकी मैनेजमेंट, उनकी एक्सपेंशन, उनकी स्ट्रैटेजी, सबके बारे में ये बताता है. ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस फर्म्स, दैट इज फर्स्ट इज मैनेजमेंट, सेकंड इज एक्सपेंशन, and third the strategy that they follow. So everything is being covered in this one, जो हमारी business economics का पार्ट है. तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, ड्राइंग फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. खुद से नहीं, इंटरडिसिप्लिन है, मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ लेयर रखा है एंड हर में यूज होता है. एज आई सेड, दिस इज बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, तो दोनों का मिक्सचर है, एक आउटकम, एक प्रोडक्ट बना के निकलता है. ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स तब से मैं बताया जा रहा हूँ. ओके, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर एंड हाउ फर्म्स ऑपरेट विद इन देम. मैंने जैसे आपको अभी बताया, मार्केट स्ट्रक्चर वी ऑल हैव स्टडीड समवेयर. मोनोपोली, वेयर द सिंगल फर्म इज ऑपरेटिंग, जैसे हमारा इंडियन रेलवेज. ठीक है, फिर वी टॉक अबाउट मोनोपोलिस्टिक, वेयर इट्स नॉट एंटायर मोनोपोली, बट हाँ एक दो फर्म्स है एग्जिस्ट करते हैं. देन देर इज ओलिगोपोली,
जहाँ पे हम कुछ फर्म्स की बात कर रहे हैं जो बहुत सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। जैसे हमारी कार फर्म्स में, एज यू नो, मेजोरिटी द नंबर हैज बीन इंक्रीजिंग, बट द इनिशियली द नंबर वाज मारुति एंड हुंडई, राइट? सो ओलिगोपोली का एक ब्रांच बनता है डुओपोली, तो उसमें वो दोनों आते थे। तो ये क्या करता है, डील करता है विद शेयर ऑफ कार्स रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ट्रेड फर्म। तो इसका कहने का क्या मतलब है, देखो, I've been saying this that throughout whenever we are studying. So economics का purpose क्या है? We are short of resources as you all know, ठीक है? तो अब कितने resources कहाँ utilize करने हैं जिससे हमें best output मिले, best utilization मिले, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। resources in production, distribution, usage of goods and services in a trade firm. All of this is being talked in business economics, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, स्कोप क्या क्या है, स्कोप बिजनेस इकोनॉमिक्स का। एज आई सेड, दीज आर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्म्स ओनली, जिसमें हम डिमांड की एनालाइज कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्टिंग डिसीजन, स्ट्रैटेजीज, प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो दीज आर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला, डिमांड की एनालाइज करना और फोरकास्ट करना। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देखो, फर्स्टली when you know the certain demand of a product is 100 units, ठीक है? So in producing 100 units, you know, a certain amount of resources, let's suppose rupees 80 is spent, ठीक है? Right, that is the cost that I have to incur to produce 100 units, ठीक है? Produce for P. But now, as I have analyzed that the demand for my production is for my product is actually going up, so there is a second scenario where the demand goes and increase up to 150 units and the cost rise up to 100 rupees for the whole production process. So I have to allocate that 20 more इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो मेरे को डिमांड एनालाइज करना पड़ेगा और फोरकास्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता व्हेन द कंज्यूमर्स आर एट माई डोर और एट माई रिटेलर्स और होलसेलर्स डोर स्टेप्स, तब मैं जाके एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा दूँ, नहीं हो पाएगा। इट हैज़ टू बी अ वेल थॉट ऑफ प्रोसेस। तो इसीलिए मुझे डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा और फोरकास्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितनी डिमांड है। सो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग आर वाइटल टू बिजनेस इकोनॉमिक्स टू लर्न क्लाइंट परचेज बिहेवियर। We analyze their action, including factors such as desired product price, their financial standing and their picks. तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करी कि इनिशियली व्हेन आई वाज प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, आई वाज स्पेंडिंग रुपीज 80 ऑन प्रोड्यूसिंग दैट मच, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा पर यूनिट कॉस्ट है, बट हाँ, अब क्या है कि अब मेरे को 150 यूनिट्स बनाने का मुझे लगता है इतना बनाना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड इज पिकिंग अप। The total cost that will come for producing 150 units would be 100 rupees. This is an hypothetical example, रियल में ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होती है। वी हैव स्टडीड थ्रू इन स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, जिसमें हमने पढ़ा है, राइट? तो अब मेरे को ये 80 से 100 करने के लिए 20 मोर रुपीस अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। सो दैट दिस इज बेसिकली डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग दैट इट टॉक्स अबाउट। ओके, नाउ अगर हम सेकंड स्कोप की बात करें, दिस टॉक्स अबाउट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ये पिविटल है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। कैसे? It involves studying the cost of other products and knowing why the cost might be either other than what was cost, ठीक है? The goal is to choose the best output level to reduce cost and increase profit. तो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ा होगा, एज एवरीवन रिमेंबर्स EOQ पढ़ा होगा। इसमें होता क्या था, दिस कॉन्सेप्ट यूज टू टेल कि हाउ मच वन शुड एक्चुअली ऑर्डर, जिससे उसके पास कोई इन्वेंट्री ना बचे, जिसके उसके पास वैसे ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी हमें पता लगती थी। वहीं यहाँ पे हम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप फर्स्टली यू विल स्टडी द कॉस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बेसिकली, और कॉम्पिटिटर्स जो उनकी कॉस्ट आ रही है। और उसके बाद क्या है, कभी कभार क्या होता है दैट योर कॉस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड, और योर थिंकिंग कि इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी बड़ी है। द गोल क्या होता है, बेस्ट आउटपुट लेवल, मतलब इतना प्रोड्यूस करना। जैसे लेट्स सपोज आई एम प्रोड्यूसिंग 80 यूनिट्स अभी, बट उसमें मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 80 रुपीज़ आ रही है, ठीक है? थोड़े टाइम बाद मेरे को पता चला अगर मैं 150 यूनिट्स बनाऊँ तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट जो आएगा 50 रुपीज़ आएगा।
तो बेसिकली सेइंग कि मेरा बेस्ट आउटपुट होगा कि मैं 150 यूनिट्स बनाऊं और मुझे 150 रुपीज़ पर यूनिट पड़ेगा, जिससे मेरा कॉस्ट रिड्यूस होगा और प्रॉफिट बढ़ेगी। ठीक है, ये मेरे को कॉस्ट और प्रोडक्शन एनालाइज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, एल्स नहीं होगा पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, फिर थर्ड जो हम बात करते हैं, दिस इज व्हाट इज मार्केट एंड प्राइसिंग। जस्ट अ सेकेंड, आई इरेज द व्हाट एवर देयर वाज। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केटिंग प्राइसिंग के बारे में। एवरी फर्म मस्ट नो अबाउट इट्स राइवल। जस्ट अ सेकेंड, बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने फर्म कॉम्पिटिटर्स के बारे में। अब अगर आपको अपने राइवल्स के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी पोजीशन कैसे पता लगा पाओगे? इफ़ यू नो दैट देयर आर 10 ब्रांड्स कंपीटिंग, ठीक है, एंड यू स्टैंड एट थर्ड और फोर्थ बेस्ट ब्रांड, सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज योर प्लेस और योर पोजीशन इन द मार्केट। ठीक है, फर्म ये कैसे पता लगा पाएगा? एक थोरो मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू कस्टमर्स, फाइंड आउट देयर फीडबैक एंड यू हैव टू रियलाइज ऑन सेल्स नंबर एज वेल। ठीक है, सेल्स नंबर्स आपको पता लगेंगे कि एग्जैक्टली आपकी सेल्स कितनी हो रही है। जब आपकी सेल्स ज़्यादा होगी तो दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग विद इन कस्टमर एज वेल कि आपका डिमांड ज़्यादा है। If you think that out of all the 10 best companies, I am at third and fourth position, how will you figure that out? You will make extensive research upon sales number, कितना आप सेल कर रहे हो एक्चुअली में। ठीक है, this analysis can aid the firm in establishing pricing and device plans to guide competitive market needs। ठीक है, अब जैसे let's suppose the top brand who is on the first position, अब ये जो होते हैं मार्केट लीडर होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बेसिकली सेइंग अगर आप फोर्थ पोजीशन पे हो, सो दीज आर व्हाट मार्केट लीडर्स। एंड मार्केट लीडर्स के पास एक पोजीशन होता है, पोजीशन एज एन दैट दे कैन डिराइव द प्राइस। वो प्राइस को ना डिराइव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और प्राइस को सेट कर सकते हैं। व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर यू थिंक दैट यू आर द प्राइस मेकर। ठीक है, व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर यू हैव द प्राइस मेकर। ठीक है, उसमें ये these are the companies who have the most of their say। बाकी companies they have to follow। ठीक है, the rest of the companies, the ROCs are the rest of companies that they have to follow what the first driver companies are actually कमिंग अप विद। ठीक है, तो इनको फॉलो करना पड़ेगा जो पहली कुछ कंपनियां कर रही हैं, बिकॉज देयर सेल्स आर ह्यूज। आप ऐसा नहीं कर सकते इनको compete करो। लेट सपोज दे हैव इंक्रीज द प्राइस, तब आपको भी इंक्रीज ही करना पड़ेगा। आप कम करके इनका मार्केट शेयर नहीं खा पाओगे, राइट? तो वो चीज़ का प्रॉब्लम होता है, दे कैन एलिमिनेट यू इन द कॉम्पिटिशन एज वेल। सो दिस इज आर मार्केट एंड प्राइसिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्रॉफिट मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, वेरियस फैक्टर्स सच एज प्राइस। जस्ट अ सेकंड, काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस हो गया, मार्केट की नीड्स होगी, ये सब हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एज यू नो, तो हमारा जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट्स आ जाता है, राइट? सिंपल एज दैट, ये फॉर्मूला है। तो अब उसमें जब हम बात कर रहे हैं कि जब प्राइजेस और मार्केट नीड्स जो है ये फैक्टर है जो इफेक्ट करता है प्रॉफिट, दैट इज वेरी ट्रू। ओके, when tension exists, it can be difficult for firm to count and work profit. Hence, profit theory prove useful as they aid in future profit planning. तो सिंपल मेरा कहने का मतलब है that काफ़ी बारी ना you think that a company goes this word like upward ही जाती रहती, नहीं। हर कोई भी कंपनी हो, in their entire journey they didn't go upward, they did come down, they did go up, they did come down, they did go up. So this is what basically saying that in such time when you earn so high profits, you have to make reserve that when you come at this position, that profit can help you to survive this place। बेसिकली सेइंग कि आपको प्रॉफिट मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे हो, सो मे बी यू कैन चार्ज एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्राइस आप चार्ज कर सकते हो। क्यों? बिकॉज यू आर एट दैट पोजिशन, राइट? आप बहुत हायर पोजिशन पे हो, मे बी यू आर द एक्चुअली वन हु इज मेकिंग द मार्केट। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि दैट when you are at the down, you don't have any authority, you don't have any say। why? Because you are at the down, आपके पास प्रॉफिट जो पहले का बचा है उसे ही आपको यूटिलाइज करके यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपनी पोजीशन में अच्छे से स्टे कर पाओ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली प्रॉफिट मैनेजमेंट इज। ठीक है,
अब बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। अब फर्म का जो एसेट है और इन्वेस्टमेंट है, वो उनको ये मेक श्योर करना दैट, जस्ट अ सेकेंड, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करने पे हमने देखा, मैक्सिमाइज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी वी ऑल हैव रेड, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। सो ये भी वही है, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, बेसिकली दे आर सेइंग दैट फर्म की जो एसेट और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, दैट इज टू मैक्सिमाइज यील्ड्स व्हाइल अंडरटेकिंग लाइकली हैजार्ड्स। मतलब ऐसा तो है नहीं जब आप एसेट और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई रिस्क नहीं होगा, ऑब्वियसली, एज वी ऑल नो दैट हाई रिस्क इज हाई रिवॉर्ड, ठीक है। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो, आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में, एग्जैक्टली exactly, आप बहुत ज़्यादा रिस्की नेचर वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो जस्ट यू गेट हाई रिवॉर्ड, दैट कुड बी अ ट्रिकी थिंग, ठीक है। बार बार हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, बिकॉज सी, अपार्ट फ्रॉम मेनी थिंग्स देर इज समथिंग दैट कॉल लक, बट अगर आप हाई रिटर्न और हाई रिवॉर्ड में, यू कैन नेवर बी 100% राइट, देर आर टाइम्स यू विल बी रॉन्ग, सो योर हाई रिस्क कैन बी कैन गोइंग बी इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो हमें वही देखना है कि हम मैक्सिमाइज कर पाए जिसमें हम रिस्क भी थोड़ा मिनिमाइज कर पाए। ऐसा नहीं कि हमेशा वी आर ऑलवेज टेकिंग हायर रिस्क रोड, हमेशा वो नहीं करना है। काफ़ी बार वी हैव टू रियलाइज दैट एट सम स्टेज we have to find out a medium scale of operations as well. This contains a regulation of cash flow, the discerning evaluation of investment perspective, and use of financial tool like risk and result to an option to oversee risk। तो मैंने जैसे बोला, काफ़ी बारी रिस्क रिटर्न वाली थ्योरी मैंने आपको बता दी। हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि हायर द रिस्क बेटर द रिवॉर्ड, ठीक है, हम सब ने पढ़ा है, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक भी नहीं है, दोनों एक ही तरफ डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिस्क ऊपर रिवॉर्ड ऊपर। You can get it right once, you can get it right twice, you can get it right thrice, but there are at times कि कभी कभी हो सकता है that आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो आप सोच के डाल रहे थे वो आपको रिवॉर्ड ना दे, बल्कि आपके वो रिस्क जो आपने एंटिसिपेट करा था वो वाला पार्ट ट्रू हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पे वेल्थ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यू हैव टू मीडिएट द रिस्क एज मच एज यू कैन, ठीक है, जितना हो सके आप अपना रिस्क जो कोशेंट है उसको कम करने की कोशिश कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे, हमने स्कोप्स पढ़ लिए हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स पे। फर्स्टली क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम। सी, मेजॉरिटी लाइक देयर आर, as we know, there are different businesses, there are different businesses with a different set of problems. As you know, there is a profession called consulting, ठीक है, different set of problems. In consulting, what we basically used to happen in consulting firms, the clients which are facing problems in their businesses, they डोंट हैव दैट मच एक्सपर्टीज, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं होती कि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाए। तो वो क्या करते हैं इन सिचुएशन में, दे गो टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट्स लाइक हु एक्सेल्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, दे नो व्हाट इज टू बी डन एट सर्टेन सिचुएशन, ठीक है। तो वो बिजनेसेस जो है अपना इशू लेके आते हैं। सो यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द बिजनेस प्रॉब्लम, फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप ही रिजॉल्व करके देते हो, दो यू चार्ज फॉर योर सर्विसेज एज यू नो। सो कंसल्टिंग में दिस हैपेंस व्हेन a business, as you know, there are different business, there are multiple thousands of businesses, हर एक बिजनेस का एक डिफरेंट सिचुएशन होगा, वी कैन नॉट गो बाय केस बाय केस ही जाना पड़ता है। वी डू हैव सम क्लासिक केस स्टडीज होती हैं, राइट, दैट मे बी और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर केस, but case by case we have to proceed, and then we have to realize what is the problem, and then we have to give a resolution for that, ठीक है। Designing numerous profitable business policies, as you know, see, we are just designing, we are not saying that you will definitely make profit, because that is different, right? We can design numerous profitable business policy, why we can, let's suppose a new company comes up, let's beauty product company is being advised to sell on subscription model,
See, this may well work in US or developed nation most likely, but not specifically India, because people are here of one time purchase. ठीक है? Subscription model is not something that we all have been adopted to, right? There might be a change. I'm not saying this is done, but हाँ एक फ्यूचर में चेंज आ सकता है, बट नॉट दैट आई कैन सी ऑफ एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस पॉलिसी बनानी है फॉर इंडिया स्पेसिफिकली इन ब्यूटी प्रोडक्ट, आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट advise them to sell on subscription model. Why? Because the market is as such, right? मैं उनको बोलूँगा that you should go and make sure that you have consumer for one time purchases. ठीक है, future protection, right? So future के लिए I will definitely guide them on subscription model. Why? Because this is not relevant today but might be in future, right? Because subscription model, as you see, number have been going up. धीरे धीरे number जा रहा है. We can see that OTT based subscription has been people are being going up, people are giving up on piracies sites and stuff. Why? Because if you make them affordable, the OTT part, as you know, Netflix also came up with their cheapest plan in India. Why? Because they wanted to make it more affordable and make it more competitive given what the peers were offering. ठीक है, तो आपको ये सब्सक्रिप्शन मॉडल, आई कैन प्रिडिक्ट दैट फॉर ब्यूटी प्रोडक्ट्स मे बी नॉट टुडे, एज ऑफ नाउ इट इज नॉट रेलेवेंट, बट या फॉर टुमारो purposes this might be good, right? So basically saying a future prediction. ठीक है, just a second, I have to okay. Building relations. Oh, building relation between distinct financial aspect. So basically now, as you know, there is finance department and there is accounts department and the other departments which actually marketing department, let's suppose they need budget from finance department. So you have to have healthy relationship between different financial aspect. If one department is not being synchronized with what your company objective is, you will fail, right? तो ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मोटे मोटे बिजनेस इकोनॉमिक्स के. फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम्स. Why? Because many times, as I said, no business will go up this way, right? Starting point ये है तो नीचे तो आना ही पड़ेगा तब ऊपर जाओगे, and then they might go down again or they might go shoot up till this time and then they come down. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है that there is no one way up. There has to be some hurdles, and while you are facing those challenges, you might be requiring an export advice. So export के advice के लिए what you can do is basically go to consulting firms, right? So there they will identify and resolve your problems. Then they can design numerous profitable business policies which won't guarantee, but yeah, they are there, they might work for you. If you are very clueless about how to proceed ahead, yeah, they will be very helpful. And then there is for future protection, what they think that this could be the next big thing in this industry. So they have that kind of experience that can help you for future protection. And then there is building relationship between different financial aspects which I just told you about. ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स की. फर्स्टली है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एज अ बिजनेसमैन आई वांट टू नो which where I am burning my money, where I am burning my money. ठीक है, so once an economic policy and business economics person actually goes through my business profile, he will actually will be identifying the places where I am burning my money, right? Where I am not allocating my resources properly, optimal way, in the optimal way. So yeah, the first importance of business economics is optimal resource allocation. ठीक है, second is competitive advantage. Yeah, as you know, these guys are export. Once you get to know about other businesses as well, how now you know their pricing strategies, now you know their costing strategies as well. Now you can gain competitive advantages by making the first mover advantages, right? First mover advantage कर सकते हो जिसमें if you have come up with something new, you can present it to the market before your competitor does. There you will get the first mover advantage. Second, coming up with something new is obviously helpful.
but knowing about what your competitors will be planning or like will be doing, that actually also helps, because you can make the changes accordingly and appropriately, ठीक है. द थर्ड वन इज प्राइसिंग डिसीजन. मैंने अभी आपको बताया प्राइसिंग डिसीजन में भी आपकी हेल्प करता है. अगर आपको पता चले कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन विच बेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइस कर सकता हूँ, ठीक है. प्राइसिंग में नॉट ओनली माई सेल्फ बट आई कैन गो थ्रू माई कॉम्पिटिटर्स एज वेल. तो अपने कॉम्पिटिटर से गो थ्रू करने की वजह से मेरा प्राइसिंग डिसीजन में बेटर हाथ बनेगा और मैं बेटर स्टेज पे रह सकता हूँ टू डिराइव द प्राइस. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहला बोला कि अगर आप डिराइव कर रहे हो, आप उन टॉप थ्रीज में आते हो, देन यू आर डेफिनेटली एट अ हायर स्टेज और हायर अथॉरिटी, ठीक है. फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, थोड़ी देर पहले ही अभी मैंने भी बस थोड़ी देर पहले भी आपको फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग के बारे में बताया कि हाँ, जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बात करें वी आर फ्यूचर प्रोडक्शन, ठीक है. हम अभी करंट जो फेज है, अभी जो करंट प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, उसके अलावा अगर लेट सपोज इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू आर एट अ सैचुरेशन स्टेज, लाइक आप ग्रो कर रहे थे, आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, और वहाँ से डिक्लाइन शुरू हो गया. वाई? बिकॉज यू आर एट सैचुरेशन स्टेज, यू डोंट हैव एनीथिंग न्यू टू कम अप विद. तो अब क्या करोगे, आप फोरकास्ट करोगे, वो यू विल प्लान कि ये जो सैचुरेशन है ना, ये यहीं तक रहे और उसके बाद मैं थोड़ा अपवर्ड चले जाऊँ, ठीक है. सो व्हाट इज दिस, यू विल फोरकास्ट, यू विल प्लान अकॉर्डिंगली वेयर आई शुड इन्वेस्ट, हाउ आई शुड इन्वेस्ट, हाउ आई मेक श्योर दैट माई मनी इज बीइंग यूटिलाइज्ड वेल, ठीक है. उसके बाद लास्ट पॉइंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है. अब हमें इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है एज अ बिजनेसमैन. आई हैव टू मेक श्योर दैट आई invest my money in multiple up avenues. Why? Because the risk is there. As I know that today I am profitable, and tomorrow I won't be. There is a chance that tomorrow I won't be. Could be anything, right? तो मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ, कल हो सकता है मैं लॉस में हूँ, तो मेरे पास रिस्क को मैनेज करना, एसेस करना, ठीक है. माई डेटर्स शुड बी लेस. ऐसा हो कि मेरे डेटर्स आए जिनको, राइट, ओ सॉरी, डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, जस्ट अ सेकंड. ठीक है, तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने उधार ले रखा है, सो व्हेन दे नॉक एट माय डोर सम डे, आई हैव इनफ मनी टू पे देम ऑफ, राइट. आई हैव इनफ मनी इन इन्वेस्टमेंट और एंड इन एसेट मैनेजमेंट, दैट व्हेन वन डे दैट दे कम अप एट माय डोर, आई हैव इनफ मनी टू पे देम ऑफ, ठीक है. तो ये हमारे इम्पोर्टेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स की. अब बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की. फर्स्टली है हमारा डिमांड. ओके, जस्ट ऐसे. फर्स्टली इज अ डिमांड एनालिसिस, ठीक है. दिस एरिया ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एग्जामिन कंज्यूमर बिहेवियर एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. It help business understand how change in price, income and other variable affect the quantity demanded. हमने पढ़े हैं बहुत सारे factors of demands. तो चेंज इन डिमांड किस किस वजह से होता है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम एंड अदर फैक्टर्स, ठीक है. अगर हम बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर बिहेवियर और जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो डिमांड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी मार्केट में डिमांड क्या है, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, you won't be able to figure out what's the next plan, what I should do next to make sure that my पोजीशन improves और basically gets better, ठीक है. तो ये जो बिजनेस है एरिया जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिमांड एनालिसिस वाला, दैट इज बेसिकली टेलिंग यू द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड हाउ चेंज इन प्राइसेस, इनकम, अदर वेरिएबल इफेक्ट क्वांटिटी डिमांडेड. एज यू नो, क्वांटिटी डिमांडेड हैज एन इनवर्स रिलेशन विद चेंज इन प्राइस. जब भी आपका प्राइस चेंज होता है, योर क्वांटिटी डिमांडेड हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप, राइट. जब प्राइस महंगा हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. when price goes down the quantity demanded goes up, ठीक है. इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, हम सबको पता है. दो देयर आर सम एक्सेप्शन एज वेल, जस्ट एज गिवन गुड्स, वो एक अलग डिटेल टॉपिक है, आई गेस
यू नो वी ऑल नो अबाउट दैट। बस मैंने एक बार रिवाइज कराने के लिए बोल दिया है कि इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है विद चेंज इन प्राइस, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें चेंज इन इनकम, सो यू व्हाट चेंज इन इनकम बेसिकली मींस दैट डिपेंड्स, राइट। तो उनमें गुड्स के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो देन देयर इज मोर डिमांड बेसिकली ऑफ अ प्रोडक्ट इफ यू आर कंज्यूमिंग। अगर आपकी इनकम गिर जाती है तो आप डिमांड कम करने लग जाते हो रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। वो डिफर करता है गुड टू गुड पे। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस पे। देखो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस में क्या है, इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर्म के अंदर, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना कहाँ कहाँ कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है विद प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद बिजनेसेस को एक डिसीजन बनाने में हेल्प करना जिससे वो अपने प्रोडक्शन लेवल को कंट्रोल कर सके, कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो पहला वाला इज डिमांड एनालिसिस, सेकंड इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। फर्स्टली हमने डिमांड एनालिसिस के बारे में बात करी। अगर आपको पता चले कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से कंज्यूमर डिफरेंटली बिहेव करता है, जैसे चेंज इन प्राइस, चेंज इन फैक्टर्स, चेंज इन इनकम, राइट, चेंज इन अदर फैक्टर्स। अब अगर आपकी डिमांड कैसी होगी तो दीज थ्रू फ्रॉम दीज फैक्टर्स, ठीक है। फिर उसके हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस की। इसमें क्या होता है, जब आप एक फॉर्म की प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी करते हो, ठीक है, इट्स नॉट अ स्टडी ऑफ वन डे। पहली बात तो सिंपल है कि ऐसा नहीं होता कि एक दिन में स्टडी कर ली। प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी करने में काफ़ी टाइम लगता है। यू डू रियलाइज कि कहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है, यू फाइंड आउट कि कहाँ पे कितना कॉस्ट लग रहा है। उसके बाद जितना कॉस्ट रिलेवेंट है यू विल मेक श्योर दैट यू टेल द प्रोडक्शन प्रोसेस की यहाँ पे दिस इज फाइन, दिस ने जितना कॉस्ट एलोकेट करा है दिस इज परफेक्टली फाइन, बट जहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करी जा सकती है वहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस करना ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, आप बेटर प्रोडक्शन लेवल, देखो जब आप हायर प्रोडक्शन लेवल पे काम करोगे, जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रीच कर पाओगे, देन योर कॉस्ट विल गो डाउन, वी ऑल नो दैट। कॉस्ट रिड्यूस होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी ज़रूरी है। सो ऑल ऑफ दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। फिर हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फोकस ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन। हम सबने पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे देर इज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अगर हम बात करें इफ़ यू गो आउट, तो आपको अगर लेस पसंद नहीं आया तो आपने कोई और चिप्स खा लिया, हल्दीराम का चिप्स खा लिया, बट वो उसका परफेक्ट कंपटीशन में एग्जैक्टली सेम चीज़ ही देता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्रांड वैल्यू कुछ भी नहीं। जैसे हम लेस में तो हाँ ब्रांड वैल्यू का डिफरेंस है, बट एग्जैक्टली जब परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करते हैं तो देन देर इज नो सच डिफरेंस, यू कैन आइदर बाय फ्रॉम एनी सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मोनोपोली की हमने बात करी थी, जहाँ पे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल हमेशा याद रखना, जहाँ पे दे हैव मोनोपोली ऑफ रनिंग रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट प्लेयर को अभी तक एंट्री मिली है, दो वी हैव बीन हेयरिंग न्यूज़ पता नहीं कितने सालों से दैट वी माइट सी एंट्री ऑफ अ प्राइवेट प्लेयर सून। फिर उसके बाद ओलिगोपोली में हमने बात करी, कुछ फ्यू फर्म्स होती हैं बिल्कुल सेम इंडस्ट्री की होती हैं जो दे आर डीलिंग इन, लेट्स सपोज जैसे मैंने कार का एग्जांपल आपको बताया, कार में दे आर फ्यू इंडस्ट्रीज, ज़्यादा नहीं है, दे ऑल मूव इन अ कार्टेल, ऐसा होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वेयर यू हैव वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स, एक दो कॉम्पिटिटर्स एंड दे डोंट हैव एनी नियर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल भी नियर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स नहीं है, बट हाँ एक दो कॉम्पिटिटर्स हैं एंड दे आर ऑल्सो इन द प्लेइंग फील्ड, ठीक है। इससे क्या होता चलता है, बिजनेसेस को वो डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड मार्केट पोजिशनिंग, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, व्हेन यू आर इन मोनोपोली, मोनोपोली मीन दैट if let's suppose Indian Railway tomorrow hikes the price of basic ticket from 100 to rupees 1000, they can do it, nobody will stop them, it's a government agency, but हाँ that you know इतना ज़्यादा जब वो दे आर सर्विंग बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ओन सेक्टर, दे वोंट डू इट। ऐसा नहीं है कि वो कर देंगे, बट हाँ अगर वो कर देंगे देन नो वन विल क्वेश्चन इट, नो वन कैन एक्चुअली क्वेश्चन देम, उस चीज़ पे क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता बिकॉज उनके पास मोनोपोली है, राइट। बट गिवन दैट दे हैव टू सर्व सो मच बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ओन सेक्टर, बट यहीं पे अगर कोई प्राइवेट प्लेयर होता देन यू वोंट बी सीइंग द बेसिक टिकट प्राइस एट 100 रुपीज, इट वुड बी हैव बीन 1000 रुपीज, नो वन वुड हैव क्वेश्चन प्राइवेट प्लेयर्स को। मार्केट में पोजीशन कैसे करना होता है, गवर्नमेंट जब पोजीशन करती है, गवर्नमेंट पोजीशन ऐसे करती है दैट देयर सर्विसेज कैन बी अवेल्ड बाय एनीवन, पुअर, द रिच, द मिडिल क्लास, एनीवन कैन अवेल देयर सर्विसेज। बट वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आपकी
प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पोजिशनिंग अगर कोई प्राइवेट प्लेयर होता रेलवे में, देन ही वुड हैव बीन सर्विंग टुवर्ड्स मेजोरिटी ऑफ रिच पीपल। वाई? बिकॉज प्रीमियम सर्विस के वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर पाता, राइट? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की अगर हम बात करें, देखो बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है, लाइफ में अनसर्टेनिटी तो बिजनेस में भी है। एंड रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, एनी डिसीजन दैट यू मेक हैव रिपरकशंस। ऐसा नहीं है कि वो डिसीजंस आज लिए कल को कुछ यू वोंट बी सीइंग एनी रिपरकशन, बहुत होते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड और इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सपैंड, वेदर एक्सपेंशन वुड बी अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, वही बेसिकली वही बात है। दिस ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प फॉर्म असेस एंड मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्लाइंडली विद द फेथ दैट गॉड विल हेल्प मी आउट, कि मैं अगर एक्सपेंशन कर लेता हूँ, एक और ब्रांच खोल लेता हूँ, rather than that, why don't you do a study, do a deep study whether opening up a branch, the total cost associated with it, and the revenue that I can generate in further 5-10 years, because you are not going there to open your business for 1 year। सिंपल सी बात है, बिजनेस हमेशा फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन करा जाता है, for 5-10 years। And for the road map, do you think your business will outgrow the cost that you are putting कंसिडरिंग राइट नाउ? तो हाँ, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, बिजनेसेस ऑफन फेस करते हैं रिस्क को, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने, एक्सपेंशन इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चेस, अगर आप अपने प्रोडक्ट जो है डाइवर्स कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट जो लाइन है आपकी एक्सपैंड कर रहे हो बेसिकली, तो जब नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ विल मार्केट रिसीव इट, राइट? ऐसा नहीं है कि यू नो once you are established, then there are chances how well the product will be received within the market space। but जब आप तक नहीं इतने established हो ना, तब problem होती है that you never know how the competitors, not basically the consumer, will perceive when you launch a new product, ठीक है। तो this is what risk and uncertainty analysis is all about, ठीक है। अभी तक हमने चार पढ़े: डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, then there is market structure, and then the fourth one is risk and uncertainty analysis। okay, so that is all for this video learning, right? agar if you are preparing for UGC net, as you might be, so you need to prep for your paper 1 as well, ठीक है। पेपर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड पेपर 1 में अगर कभी भी किसी जर्नी में कभी भी किसी फेज पे अटके हुए हैं, सो दैट इज़ वेयर वी विल हेल्प यू। What you can do is basically claim your free ebook, not only for this particular unit but for each and every unit. How? You can basically WhatsApp on this number 9873 907600, right? It's a free ebook, you can easily download it for free। and if you want to study from scratch, this is a very well defined study material, बिल्कुल अच्छे से explain कर रखा है what you have to study, what exactly is needed, जो जो चीज़ें हैं सब इसमें बता रखा है। so everything what you can do is basically send a WhatsApp on this particular number, claim your ebooks on all the 10 units for paper 1 सारे का सारा। and if you still need to learn how you have to score well, I have, like, basically there is my series on YouTube channel of Talent Blazer, as you know because you are here। तो YouTube चैनल पे आपको मेरे को सारी की सारी सीरीज मिल जाएंगी फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10, सब कुछ सब है। सो ऑल ऑफ दैट इज एक्सेसिबल एज वेल, ठीक है। पेपर नॉलेज सारी जो बुक्स है उसमें स्क्रैच से दे रखा है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड नुआंस्ड फॉर एवरी वन टू लर्न, ठीक है, right? So thank you all for joining, and with your support and with your love, we have been rated this highly well in on the Play Store। and if you're not aware about the app, there is an app of Talent Blazer on available on the Play Store, the link for the same will be mentioned in the description below, right? You can download it for free। and if you like the content that we are providing, you can access and give multiple mock tests for free there। and you will if you haven't rated it yet, definitely give it a rating, and it has been rated uh, by 171 student as of now, and 4.8, and that's definitely a good positive rating। so yeah, if you like the content that we are producing, definitely go and check out Talent Blazer app, that is also for free। if you like the video that I created, do leave a like button, subscribe to the channel so that you get notified whenever I come with the next video, and share this video with your friends who are preparing for this UGC NET examination paper 2 commerce, right? So that they also get notified। and one more important thing, while I was covering today's class, towards the end we discussed so many important things: the monetary policies,
contraction, expansion, the monetary policy tools. Each and everything is very important and crucial for you guys to remember for your examination. Examination में वही part काफ़ी ज़्यादा आता है. I covered the basics and then I move to advance. ठीक है, जैसे मैंने बोला था, like करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब भी, and share with your friends and hit the bell icon as well, right? Bell icon क्यों? Because whenever I come up with the next video, you will get notified for the same, right? So that will all for today's class. I will meet you in the next session. For that, as I said, you have to subscribe, so whenever I come up with next video, you get notified for the same. Do download the Talent Blazer app and your free ebook as well, so that whenever you are being troubled, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर होने. एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, mention in the comment section. I'll try to get back to you, right? So जब भी possible होगा, so make sure that you leave whatever you think about what we are providing. The feedback will be very helpful. Okay, so thank you all.